Hello students, this is lecture number 9 of the chapter BRS Bank Reconciliation Statement और आज हमारा लास्ट टॉपिक है amended cash book. This is our last topic and hence last chapter, last lecture of the chapter. What is amended adjusted cash book? अमेंडेड और एडजस्टेड कैश बुक का मतलब है कि पहले आप कैश बुक बनाएंगे, फिर उससे आप बीआरएस बनाएंगे. अमेंडेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक कंप्लीटली ऑप्शनल होता है. बट 31 मार्च को अगर बैलेंस शीट बन रही है, बुक्स क्लोज हो रही है, बीआरएस बन रही है, तो एडजस्टेड कैश बुक कंपल्सरी है. अमेंडेड कैश बुक में हम क्या करते हैं, पहले वो एंट्रीज डालते हैं जो बाय मिस्टेक हुई हैं या जो एंट्रीज कैश बुक में डलनी चाहिए थी बट नहीं डली. सो कैश बुक को सही किया जाता है बैंक कॉलम में, जो कैरी डाउन आता है उसको यूज करके बीआरएस बनाया जाता है. और बीआरएस में सिर्फ वो एंट्रीज आती हैं जो टाइम डिफरेंस की वजह से आती हैं या पासबुक की मिस्टेक्स की वजह से आती हैं. सो कहने का मतलब है देयर इज वन टाइम डिफरेंस कि हमने 28 मार्च को चेक लगाए पर 2 अप्रैल को चेक क्लियर हुए, ऐसा इशू रहता है जिसे पासबुक और कैश बुक का बैलेंस डिफर कर रहा है. दूसरा रहता है जो एंट्रीज सिर्फ पासबुक में एंट्रीज रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और तीसरी होती हैं एरर्स इन कैश बुक एंड एरर्स इन पासबुक. हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे अमेंडेड कैश बुक. अमेंडेड कैश बुक में हम ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज डाल देंगे कि हम कैश बुक को सही कर देंगे. और जब कैश बुक सही हो जाएगा फिर हम ये वाली एंट्रीज और ये वाली एंट्रीज को बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे. मैं रिपीट कर रहा हूं, अमेंडेड कैश बुक इज कंपल्सरी ओनली इफ the books are finally closed on 31st March. Otherwise, it is optional. Write down the topic name, amended cash book. Write down the explanation. The BRS is prepared. The BRS is prepared after adjusting the cash book. After adjusting the cash book. Full stop. Adjusting the cash book before preparing the BRS. Adjusting the cash book before preparing the BRS is completely optional. Is completely optional. If reconciliation is done during different days or months, if reconciliation is done during different days or months, full stop. But if the reconciliation is done at the end of, full stop के बाद but, if reconciliation is done at the end of the accounting year or financial year, at the end of the accounting year or financial year, comma, the cash book must be adjusted first. The cash book must be adjusted first. Full stop. Change the paragraph.
The adjusted cash book will have only bank column. The adjusted cash book will have only bank column and records the transactions not recorded in cash book earlier, the transactions not recorded in cash book earlier and transactions to rectify the errors and transactions to rectify the errors. Full stop. चलिए क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू वन क्वेश्चन. It will be clear. Amended cash book will be clear more after this. Question number 22. Question number 22. The cash book of Mr. Veer Bharadwaj showed a balance of 8,070 on 31st March in the bank column. कैश बुक में बैंक कॉलम हमें बता रहा है कि बैंक में 8,070 रुपये पड़े हुए हैं 31 मार्च को. द फिगर डिड नॉट अग्री विद द बैंक पासबुक. अ कंपैरिजन ऑफ द टू रिवील्ड द फॉलोइंग 1 2 3 4 5. Show the corrections to be made in cash book as to ascertain the balance to be shown in the balance sheet and prepare BRS. Please underline corrections to be made in cash book. Please underline corrections to be made in cash book. इसका मतलब है adjusted cash book या amended cash book बनानी है. There are 5 entries. पहले देखते हैं कौन सी कैश बुक में जाएंगी और कौन सी BRS में जाएंगी. Number 1. The bank has debited 1440 the annual premium of life insurance policy according to standing instructions and with 45 as bank charges. बैंक वालों ने बैंक से पैसे काट लिए क्योंकि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी. ये एंट्री सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुई है. दिस एंट्री हैज बीन पास्ड ओनली इन पासबुक एंड हेंस ये जाएगी अमेंडेड कैश बुक में. द फर्स्ट विल गो इन अमेंडेड कैश बुक. 2. The bank has credited Mr. Veer Bharadwaj 21 under the proceeds of a bill. बैंक में 2100 आ गया बट हमें अभी तक पता नहीं चला. बैंक में पैसे आ गए बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए. दिस एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक सो विल रिकॉर्ड इन द अमेंडेड कैश बुक. 3rd, 4th एंड 5th ये तीनों है टाइम डिफरेंस की वजह से तो ये जाएंगी BRS में. Let's make the format. Let's start with cash book. 22 adjusted cash book. There is no required for the date column but we are making it. F stands for folio. कैश का कॉलम खाली रहेगा, ना भी बनाए तब भी चलेगा. हमें बेसिकली सिर्फ बैंक का कॉलम ही चाहिए होता है. कैश बुक में पैसे हैं 8070 बैंक के कॉलम में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8070. ओवरड्राफ्ट होता तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते. द बैंक हैज डेबिटेड मिस्टर वीर भरद्वाज विथ 1440 द एनुअल प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम.
बैंक से पैसे चले गए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है इधर, जो जा रहा है वो उधर। 8,070 रुपए थे, हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज बेसिकली ड्रॉइंग्स। We have paid the drawings of 1440. First part. और बैंक ने 45 रुपीज़ मेरे अकाउंट से काट लिए। मैंने अभी अपना फ़ोन भी चेक किया, मेरे बैंक से 118 रुपीज़ कटे हैं कंसोलिडेटेड चार्जेस। 100 रुपये उन्होंने चार्जेस काटे, पर मंथ काटते हैं, और 18 रुपीज़ उस पर GST लग गई। सेम विद दिस 45 रुपीज़ बैंक चार्जेस, मेरे बैंक से पैसे चले गए। बाय बैंक चार्जेस 45। द बैंक हैज क्रेडिटेड मिस्टर वीर भारद्वाज फॉर 2100 फॉर द प्रोसीड ऑफ बिल। बैंक में 2100 रुपीज आ गए। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट ओनली। सेकेंड, टू बिल 2100 रुपीज आ गए बैंक में। Now we will close the cash book by balance carried down। इस साइड का टोटल, the total of debit side is 80, 70 and 2100, 10,170। and credit side is difference 8685। the balance is 8685। अब इससे हम शुरू करेंगे BRS। now we'll be making the BRS from this। make the format bank reconciliation statement। particulars, positive, negative, amount in rupees, ये जो बैलेंस है ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। दिस बैलेंस विल पुट इट बैलेंस शीट एसेट साइड। 31 मार्च है। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 10,170। थर्ड पॉइंट, Mr. Veer Bharadwaj paid in checks totaling 3150 on 26th March, of which 2340 were collected in March and 14225 was returned as dishonored, the information of which was received by Mr. Veer Bharadwaj on 2nd April. The rest was collected and credited in April 2018. 3150 का चेक है। 3150 के काफ़ी सारे चेक्स हैं, उसमें से 2340 ये कलेक्ट हो गए, बैंक में पैसे आ गए। $225 का चेक डिसऑनर हो गया और बाकी अप्रैल में क्रेडिट हुए हैं। बाकी कितने बचे, लेट्स सी। 3150 के चेक हमने रिकॉर्ड किए थे, उसमें से 2340 क्लियर हो गए। 225 का चेक डिसऑनर हुआ बट हमें नहीं पता चला, और 585 के चेक बाद में क्लियर हुए हैं अप्रैल में। सो कैश बुक बढ़ गई 3150 से,
कैश बुक बढ़ गई 3150 से, पासबुक बढ़ गई 2340 से। कैश बुक इंक्रीज्ड बाय 3150, पासबुक इंक्रीज्ड बाय 2340। सो कैश बुक बढ़ गई, माइनस करेंगे ये दोनों चेक से कैश बुक बढ़ चुकी है, इसलिए माइनस करेंगे। चेक डिसऑनर्ड 225, checks deposited but uncredited। चेक जमा करवा दिया बट बैंक में पैसे नहीं आए, अभी अप्रैल में आए हैं, क्वेश्चन में मेंशन है। फोर्थ, द कैश कलेक्शन ऑन 31st March totaling 915 was entered in cash book in the bank column on the same day but it was banked on 2nd April। 915 रुपए बैंक में जमा करवाए, एंट्री डाल दी, करवा दी है, बट बैंक में जब गए 31 मार्च को बैंक बंद था। जस्ट फॉर नॉलेज 31 मार्च को बैंक बंद होता है। बैंक बंद था तो हमने बोला 1 अप्रैल को भी बैंक डे बंद था, सैटरडे संडे वॉटेवर, तो बैंक में 2 अप्रैल को पैसे जमा हुए। तो टेक्निकली क्या हुआ, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक कम हो गई, क्योंकि हमने एंट्री डाल दी है कि पैसे आ गए, बैंक में जमा करा दिए, बट अभी तक करवाए नहीं, जमा एक्चुअली में हुए हैं 2 अप्रैल को। हम चल रहे हैं कैश बुक के हिसाब से, कैश बुक बढ़ गई तो करेंगे माइनस। नंबर 4, कैश बैंक्ड ऑन 2 अप्रैल 915। Fifth, in March, Mr. Bharadwaj issued check 4350 of which 1275 have not been presented। हमारे अकाउंट से 4305 चले गए, हमने चेक दे दिए, बट बैंक से 1275 ही गए हैं। कैश बुक कम हो गया, पासबुक बढ़ गया। कैश बुक चला गया 4305, बैंक से चले गए 1275, तो कैश बुक कम हो गया, प्लस चेक्स इशूड बट अनप्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड। कितने प्रेजेंट हुए, 4305 में से 1275 प्रेजेंट हुए हैं, तो कितने प्रेजेंट नहीं हुए, नो 1275 ही है जो प्रेजेंट नहीं हुए। वहां पे लिखा 1275 नॉट प्रेजेंटेड। लेट्स डू द टोटल नाउ। 10170 प्लस 1275 माइनस 225 माइनस 585 माइनस 915, 9720। बैलेंस एज पर कैश बुक 8685 प्लस 1275 माइनस 225 माइनस 585 माइनस 915, इट्स 8235। शुरू किया कैश बुक पे, खत्म करेंगे पासबुक पे। बैलेंस एज पर पासबुक। सो अमेंडेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक का मतलब होता है कि जो कैश बुक की एंट्रीज नहीं डली वो अब डाल दो, जो कैश बुक की एंट्रीज नहीं डली हुई वो कैश बुक में डाल दो, और ये बैलेंस को उठा के यहां पे बाकी एंट्री से BRS बना लो। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। दिस इज योर BRS, एडजस्टेड कैश बुक। टेक्निकली एडजस्टेड कैश बुक आपके सिलेबस में आपको पता होना चाहिए क्या है, प्रैक्टिकली पेपर्स में नहीं आते, चांसेस बहुत कम होते हैं, बट यू शुड नो व्हाट इज एडजस्टेड कैश बुक। लेफ्ट विथ 1 MCQ। 14th क्वेश्चन 24 का 14th,
while preparing amended cash book, the rectification in the cash book is needed to be done for. क्वेश्चन 24 का 14th, अमेंडेड कैश बुक बनाते वक्त कैश बुक में जो रेक्टिफिकेशन करनी है उसकी जो ज़रूरत है, नीडेड, वो है ए, एरर्स इन पासबुक, नो, unpresented checks, no, that is for difference time. D, unrealized check, no, uncredited checks is the time difference. Errors in cash book, yes, जो कैश बुक में गलतियां हैं उसको ठीक करना है. So the right answer is B. 24th के 14th का आंसर है B is correct. Errors in cash book. These are the 9 lectures of BRS and we are done with the chapter. 3-4 days you may start the practice. Assignment is already available to you. Namaste.